Hello all my dear students, good morning to all of you. How are you all guys? I hope that you all will be fit and fine and enjoying your studies online at your homes. And as you know, I am Ajay Tiwari, your science teacher, and I am welcoming you to all once again to your official YouTube channel, that is Ajay Tiwari Science Classes, on the behalf of Subrat Singh Children Academy, Jaunpur. And as you know, your midterm examination is right now over, and most importantly we have also completed half portion of your science syllabus. So today I am starting with your chapter number 11, that is what? Force and pressure. Okay, so in previous chapters, reproduction in animals, we have concluded all the main topics, those were there in the NCERT, keywords and exercise. So here we are starting with a new chapter, that is force and pressure. A very little content is here, it will be completed in just 2 or 3 videos. Don't worry about that. Very simple chapter, there will not be any doubt. And one more important thing, always watch complete video for your clear cut understanding, or we can say that crystal clear concept. So there are 2 words here, force and pressure, because these chapters are the part of your higher classes, 11th especially. That's why you have to just digest all the concept, or you have to watch the video carefully. So force, have you observed that if you are running continuously, अगर हम लगातार ऐसे दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए अगर हमको कोई पीछे से ऐसे धक्का देता है तो हम गिर जाते हैं. It is, you have observed that. Second condition, let's see that there are certain people who have some domesticated animals, and people are often fond of the dogs. Those may be German Shepherd, those may be Pomeranian या Vodafone वाले भी हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की कैटेगरी में डॉग को रख रखा है. सपोज यू आर जस्ट गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, एंड ऑब्वियसली इट्स योर मॉर्निंग वॉक टाइम, एंड अलॉन्ग विथ योर डॉग यू आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, बट यू हैव टू होल्ड योर डॉग्स. डॉग्स को आप क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं, उसका रस्सी या जो भी पट्टे हैं आपके पास, उसको पकड़ के खींचते रहते हैं, वो अपनी तरफ भागा रहता है. तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, खींचना पड़ता है, होता है ना, जोर लगा के खींचते हैं आप उसको. इन द सिमिलर फैशन, if you are just taking out water from wells, obviously wells are not there, but in certain regions such as Rajasthan, people often just using the wells. You are just taking out water, you all have to apply something there. And if you are playing a cricket, if you are playing cricket, ball is coming and you are just hitting the ball by means of a bat, you are also applying something. Suppose you have just catch the ball and just thrown it, you are just also applying something. So all these something is just nothing a force. ये जो कुछ भी something हम कह रहे थे, ये something ना होके force है. So what is force? Force is a push or pull. Push or pull. Let's consider this chalk. इस चौक को हम देखिए हमारे उंगली में है, एक बड़ा वाला ले लेते हैं. ठीक, हमने इसको ऐसे यहाँ पे पकड़ रखा है, एंड बी जस्ट पुशिंग इट, हम यहाँ से इसको पुश कर रहे हैं, और आप देखिए ये धीरे धीरे आगे की तरफ सरकता हुआ चला गया. अगेन आई एम जस्ट पुलिंग इट, एंड आई एम पुलिंग इट एंड आई एम एबल टू पुल इट. अगेन आई एम पुशिंग इट एंड आई एम एबल टू पुश इट थ्रू द फिंगर्स. सो व्हाट इज फोर्स? लेट्स डिस्कस हियर. Force is a push or pull. Force is a push or pull, यानी आप चीज़ों को अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, बाहर की तरफ खींच रहे हैं. सो फोर्स इज ए पुश और पुल. अच्छा, अब अगर पुश और पुल आप करेंगे, देन ट्राई टू चेंज और चेंज द डायरेक्शन ऑफ, try to change or change the direction, shape, or we can write size of an object. Okay, how? Let's consider I am just pushing this chalk in the forward direction, then it will just move in the forward direction. If I am pulling it in the backward direction, it will show the movement in the backward direction. It means that force
or we can write after applying the force, after applying the force, after applying the force, the object that is at rest may start movement. ओके, यानी कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि मान के चलते ये आपका ब्लैक बोर्ड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ ढकेल रहे हैं. तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि दीवार तोड़ के अंदर चला जाएगा, बट हमने प्रयास किया. सो फोर्स इज ए पुश और पुल दैट ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन, शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्स अप्लाई करें तो आपको रिजल्ट मिले. इवन आपने कोशिश की, हो सकता है आप सफल हो सकता है आप असफल हो जाएं. यू हैव ऑफन सीन इन योर क्लासरूम्स, if benches are not in proper manner, your class teacher says that just pull it or just push it in a proper sequence. आप बेंच को अपनी तरफ खींचते हो या उसको दूसरी तरफ लेके जाते हो बाकी सीक्वेंस में लगाने के लिए, वहाँ पे भी आप फोर्स का अप्लाई करते हो. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. What are the certain characteristic of a particular force? Those are various kind, contact, non-contact. We will discuss later on. Suppose, let's consider first point. When two forces means that there are two persons who applying the force. When two forces are applied on a particular object in the same direction, the net resultant force is the sum of these two. Okay, let's consider this was a particular object and there was two people, A and B, was applying the force in the same direction. Then sum of A and sum of B will be considered as a force. Okay. Yes beta, you can see here there are two men pushing a particular object in a particular same direction. Let's consider the second point. When two forces are applied on a particular object in opposite direction, the net resultant force is the difference between them, What is the meaning of this? Suppose this was an object, we can say that there was two forces. A was applying the force in the forward direction and B was applying the force in this direction. यानी एक फोर्स इधर से लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर से लग रहा है. तो यानी इन दोनों में से हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं इन्होंने क्या लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इन्होंने क्या लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया. तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यानी 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा. इन द सेम वे सपोज ए वॉज अप्लाइंग 10 न्यूटन and B was also applying the 20 Newton force, then resultant force will be 30 Newton. It means that sum of these two, and here vice versa. Okay, so this was all about the characteristics of force. And here a particular person pushing a box
and that is start motion, but opposite to this there is a friction that opposes the motion. Now we will discuss about the effect of force. Okay beta, so before studying about the effect of force, let's discuss about the force is represented by इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F, and in mathematical formula, or we can write in mathematical concept, force is equal to ma. F is equal to ma. Here F is equal to force, m is equal to mass, and a is equal to acceleration. So this one is of mathematical concept, that force is equal to ma, where m is mass and simply a is equal to acceleration. Okay, next unit, SI unit of force is equal to, as you know, Newton. SI यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन. नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी बेटा फोर्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा. पहला पॉइंट लिख लीजिए, अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी body to move, or it can increase or decrease the motion. Okay, so if we just apply a particular force, then the object that was at rest, it may start motion, or it will try to change its place, or it will be from rest state से क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट से मोशन में आ रही है तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ पे वो क्या है, इफेक्ट है फोर्स का. ओके बेटा, अगला देखिए यहाँ से, force can change the direction of motion. Force can change the direction of motion. कैसे, मान के चलते हैं मैं आगे की तरफ ऐसे जा रहा था बेटा, ठीक है, कोई आया हमको पीछे से पकड़ के खींच लिया तो हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई. ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द shape and size of an object. इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका चौक था दिख रहा है, हमने इस पर फोर्स लगाया और ये छोटा हो गया, ठीक से साइज क्या हो गई, चेंज हो गई. अब आप कहेंगे सर इसको आप दबा के दिखाइए, इसका शेप चेंज करिए. नहीं भाई, शेप तो मैं नहीं चेंज कर पाऊँगा. शेप चेंज करने के लिए जैसे मान के चलते हैं ये हमारे पास स्केल है, ये स्केल आपको दिख रही है, ठीक है, इस पर हमने फोर्स लगाया. अब देखिए इसकी शेप चेंज हो रही है कि नहीं, ये बेंड हो रही है, द शेप गॉट चेंजिंग. अब आप कहें सर इसको तोड़ दीजिए, अगर मैं तोड़ के इसको दो पार्ट में कर दूं तो इसकी साइज़ भी चेंज हो जाएगी. तो आप शेप साइज समझ गए ना, हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ये बेंड हो जा रही है तो इसकी शेप चेंज हो रही है. इसको हम तोड़ के अगर 3-4 खंड में अलग अलग कर दें तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है बेटा, तो ये है फोर्स कैन चेंज द शेप and size of an object. Force can change the direction of the motion, as well as force can change the motion state. कहने का मतलब क्या था, अगर कोई पहले स्टेशनरी था तो बाद में वो मोशन में आ गया. और क्या कह सकते हैं हम, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड. मान के चलते हैं हम बहुत तेज़ी से ऐसे दौड़ रहे थे, आप हमको पीछे से पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, आप पीछे की तरफ खींच रहे हैं, हम आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ द
force. Yes, now you can see the effect of force. Stretch rubber नॉर्मल हो गया, फिर से एक ने आप स्पॉन्ज को पुश किया, फिर से नॉर्मल हो गया। यहाँ पे एक ट्रक को पुश किया, जरा आगे मूव करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ उठता है वाई फोर्स अराइजेस। ठीक है, यानी फोर्स एग्जिस्टेंस में क्यों आया, तो हम कह सकते हैं फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ interaction between two objects, or we can write surfaces. What is the meaning of this? Suppose this was the chalk number 1, this one is the chalk number 2. ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इनके बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। अब इंटरेक्शन हुआ, देखिए एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए ये। ठीक है, अब क्लोज आए तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा मैग्नेट के केस में, अगर हम दो मैग्नेट ले तो एक मैग्नेट ये, दूसरा मैग्नेट ये, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वहाँ पे भी कुछ फोर्स लग रहा है। अगर ये एक दूसरे के नज़दीक आ गए, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स काम करेगा। ठीक है, अगर इनके बीच में क्या हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स काम करेगा। सो फोर्स विल कम इन द एग्जिस्टेंस व्हेन देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके बेटा, अब यहां से हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। वी विल टेक इंट्रोडक्टरी पोर्शन ओनली एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिटेल। द फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट force. Okay, here second one is non-contact force. It is clear from its name, contact. It means that there are particular two or more objects, those are related with each other or those are in contact with each other. Suppose there are various kind of chalks, those are in contact with each other, so they will show or they will exhibit contact force. For example, let's consider type number 1, muscular force. Second one is here frictional force. Okay, what is muscular force? It is clear from its name. हम क्या कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि आप मान के चलिए कि हमारे हाथ में क्या है, डंबल है, और हम क्या कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो हियर जस्ट वी आर लिफ्टिंग द बॉल और वी आर लिफ्टिंग द डंबल, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग द muscular force. So muscular force is applied by means of the muscles of our body. Why? Here, as you know, why this is contact force? Because dumbbell is also in contact with us as well as our muscles are also intact with that. यहाँ से आप कंसीडर करें, ये मान के चलते हैं स्केल है, ठीक है, अभी बस बहुत लाइट वेट है, लेकिन हमारे लिए लाइट है, अभी छोटे बच्चों को दे देंगे तो उसके लिए हैवी हो जाएगा। इसको आप क्या मान लीजिए, डंबल मान लीजिए, और इसको हम ऐसे उठा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके और हमारी मसल्स के बीच में, हमारे हैंड की जो मसल्स हैं उनके बीच में कांटेक्ट है कि नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल है। तो दैट्स व्हाई हियर क्या है, ये मस्कुलर फोर्स है बेटा। ठीक, सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? इफ देर आर टू सर्फेसेस and those two surfaces are very rough, it means that let's consider this was a particular surface like this, ये एक रफ सरफेस था, दूसरा सरफेस ये वाला भी रफ सरफेस था, ठीक है। एंड इफ these two objects when will come with each other, they will show frictional force along with the heat. Obviously you have seen that in your bicycles, cars as well as motorbikes, there is use of ball bearings. वो बॉल बेरिंग लगती है ना, जिसके अराउंड आपका जो व्हील है वो क्या करता है, रोटेट करता है। So that is just instrument or device to just reduce the friction. You often seen that you wear shoes as well as various cloths, those just wear away. आपने शूज पहना, शूज के सोल घिस जाते हैं, चप्पल आपकी घिस जाती है, क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। वो क्यों घिसती है भाई? हम ज़मीन पे चलते हैं तो अर्थ के सरफेस के बीच में और हमारे शूज के बीच में क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इस वजह से वहाँ पे भी कांटेक्ट होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स,
Here, contact between, direct contact, we can say that direct contact between the two objects is not necessary, such as magnetic force that is exerted by the magnets. Okay, next, अगर मैग्नेट ये देखिए इतनी दूरी पे भी रखे हैं ना, तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. आपने देखा होगा अगर कोई भी क्रिकेट प्लेयर है और बॉल को बिल्कुल वो 6 के लिए मार रहा है, तो बॉल हवा के माध्यम से वो ट्रैवल करते हुए आगे जाती है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एयर में आपकी बॉल थी, एयरबॉर्न थी, वो नीचे लाने का काम करती है. मान के चलते हैं ये चौक है, हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया, तो ये नीचे क्यों आया? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसके और अर्थ के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फोर्स काम कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स. लेट्स कंसीडर वन मोर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. This is the force that is just existed or that is just inexistent due to charged body. ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज बॉडीज हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो दिस इज द जनरल आउटलाइन ऑफ द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. वी विल डिस्कस ईच मस्कुलर, फ्रिक्शनल, magnetic, gravitational, electrostatic forces in very detail in the part 2 videos along with the examples. So this was all about for today, and I hope that after watching the video there will not be any doubt. You can also do the activity at your homes also by means of just पुशिंग और पुलिंग एनीथिंग. अब आपको अपने भाई बहनों को, मम्मी पापा को धक्का नहीं देना है, नहीं तो कहो आपने सर ने कहा था कि हम पुश और पुल करके फोर्स अप्लाई करके देख रहे हैं. नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं करोगे. आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बड़े शौक होते हैं. ठीक है, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं, उसमें फिर आपने देखा होगा खुद से वो सारा सिस्टम वहाँ से बनाते हैं, और एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेके फिर उस ज़मीन को समतल करते हैं. तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसको पुश पुल कर रहे होते हैं आप. ठीक है, या आप मान के चलते हैं आटे की, चावल की बोरियां उठा रहे होते हैं, वहाँ पे भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. आपकी साइकिल क्या हो गई, पंचर हो गई, तो आप उस पर बैठ के नहीं जा पा रहे हो, खींच के लेके जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. ओके, सो देर इज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इन योर डेली लाइफ. सो यू विल पॉइंट आउट all those and you will send to me, or you can leave in your comment box. So that is all about for today. Once again, thank you very much, and don't forget to like the video, subscribe the channel and share with your friends. So that is all about for today. Like always, have a nice day, keep smiling and jai Hind.